taking out time and sharing your thoughts with us. I would now like to request IQAC Coordinator Dr. Vinita Tuli to introduce our chief guest, Padma Shri Professor Dinesh Singh. On behalf of the Internal Quality Assurance Cell of Atmaram Snakandhan College, I welcome the esteemed guests, Principal Sir, dignitaries, my colleagues, students and my dear friends. खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमां बाकी है. These lines aptly epitomize our esteemed chief guest for the day, the distinguished academic leader, innovator, thinker, educator and policy maker, Padma Shri Awardee Professor Dinesh Singh. Professor Dinesh Singh is the Vice Chairman of the Jammu and Kashmir Higher Education Council. Sir holds and has held many prestigious positions. Is the former Vice Chancellor of the University of Delhi from the year 2010 to 15, AICTE Distinguished Chair Professor from 2021 onwards, Chancellor of K.R. Mangalam University from 2018, Distinguished Professor at the SGT University Haryana from 2020, and the Adjunct Professor at the University of Houston, United States of America from 1997. Distinguished Senior Fellow at the Advanced Hackspace, Imperial College London from 2016 to 18. Distinguished Academic Consultant at the Middlesex University London from 2018 to 20. Sir was conferred with the Padma Shri, one of the highest civilian awards of the Government of India. Professor Dinesh Singh has received honorary doctorates from the University of Edinburgh, National University of Ireland, University of Houston and National Institute of Technology, Kurukshetra. Sir has been the member of the Scientific Advisory Committee from 2011 to 18 formed by the Union Cabinet, Government of India. Professor Dinesh Singh's research is in the realm of harmonic analysis and the operator theory. Sir's research has been cited in numerous books, journals and has been taught in courses. Sir has served on the jury of the Gyanpith Award, one of the India's most prestigious literary awards. And he was on the steering committee of science and technology and also education for the 12th five-year plan for India by the Planning Commission, Government of India. Sir has pioneered several new ideas in the realm of education and on the role of technology in education. Sir has also delivered the world over many lectures in the realm of education and the role of technology in education. And Sir has delivered the policy towards economic growth, lectures on policy towards economic growth, on mathematics and on Gandhi. Sir has published numerous mathematical research papers in international journals and his mathematical work is cited in several books, monographs and papers. And he has also authored and edited several books. Sir has obtained his PhD degree from the Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, and has done his graduation and masters from the prestigious St. Stephen's College. Sir is a painter, acclaimed public speaker and a student of Gandhian philosophy, and is avidly fond of literature in English, Hindi and Urdu. He has keen interest in sports and has been a college colour holder in volleyball. Sir is currently setting up the pioneering idea in education in the form of the Internet College and the College of Startups, and is also working on a book dealing with India in the 21st century. Sir, we are really privileged to have you with us. And now I invite Professor Dinesh Singh for the presidential address. Thank you. मैंने अनुमति ले ली है प्रिंसिपल महोदय से कि मैं बैठकर ही बोलूंगा। विनीता जी, मैं अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपने
तमाम मेरे खुद को नहीं मालूम ऐसे गुणों का ध्यान किया है। पिताजी जीवित होते तो उनको बहुत अच्छा लगता, परंतु यकीन सिर्फ मेरी माँ को होता। और मुझे तो डर लग रहा था कि कुछ ही देर में विनीता जी मेरे पिछले जन्म में भी चली जाएगी। पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक ही कष्ट है कि मैं अपनी मदर इन लॉ को लाया होता तो कुछ मेरा भी भला हो जाता। अभी तक मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया हूँ कि उनकी बेटी ने भूल नहीं की। बट थैंक यू वेरी मच। यहाँ आना मुझे अत्यंत प्रिय लगता है और मूल कारण यह है कि यहाँ के लोग जो हैं उनके अंदर एक ऊर्जा है, एक सोच है। जिस प्रकार की प्रक्रियाओं को लागू किया गया है, मैं कुछ छात्र हैं शायद इन बातों से पूर्ण रूप से अवगत ना हो, तो मैं इसलिए संबोधित कर रहा हूं। और देखिए, इसलिए भी कर रहा हूं कि जो मूल विषय है आज का, ज्ञानतोष बहुत भले हैं, हमारे अत्यंत प्रिय हैं, इनकी आस्था कुछ भटक जाती है और ऐसी चीजों पे हमको बुला लेते हैं। मैं तो आता हूं लालच के कारण कि यहाँ आने से मुझे आत्मशुद्धि होती है। इसके संदर्भ में जो आज का विषय है, जिसमें अनन्या जी ने इतने खूबसूरती से अपनी बातें रखी, मैं उसका कोई विशेषज्ञ नहीं। और जो कुछ कहना था मोटा मोटी अनन्या जी ने कह ही दिया है। अब मैं सोच रहा हूं कि जब हम लोग ज्ञानतोष के दफ्तर में बैठे थे और इनकी जो स्पीच है उन्होंने मेज पे रख दिया था, ध्यान था इनका कहीं और, मुझे उस समय उसको हाथ की सफाई से उठा लिया और धीरे से उसमें अपना नाम जोड़ देता, इनका कार्ड देता, तो इनकी हिम्मत न पड़ती अपनी स्पीच बना के पढ़ने की, तो मैं इसको पढ़ लेता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं क्यों आता हूं इस कॉलेज में, मैं ये भी बता दूं, वो भी भारत की ही कहानी है। किस प्रकार से यहां जो युवक आता है पढ़ने, वही भारत का भविष्य है। और अगर यहाँ का युवक उत्साहित हो, उसके अंदर हर्ष और उल्लास उत्पन्न हो, अगर उसके अंदर इस प्रकार का उत्साह हो, उमंग हो कि मुझे आगे चलकर समाज में कुछ ऐसा करना है जैसे उसकी भी आत्मशुद्धि हो जाए, समाज की भी हो जाए, तो भारत का भला होता है, हिंदुस्तान का भला होता है। और जब मैं इस कॉलेज से जुड़ा था ज्ञानतोष के आने के थोड़ा पहले से, वो कैसे जुड़ा कि मैं कुलपति बन गया, 2010 का किस्सा है। और बनने के बाद मेरी कुछ आदत थी कि मैं बिना बताए कॉलेजेस में चला जाता था। तो यहाँ भी मेरा अनुमान है कि अगस्त का महीना था ज्ञानतोष, मैं यहाँ आया और नीचे जहाँ बरामदा सा है, जहाँ गाड़ियां रुकती हैं, मैं वहाँ खड़ा था और मैंने देखा कि एक छात्रा मायूस सी खड़ी है। चेहरे से पता नहीं, जब आप अध्यापक बन जाते हैं, और एक बहुत ही बड़े इंसान ने मुझे यह बात कही थी कि अगर सफल अध्यापक बनना है तो ये मान के चलो कि हर बच्चा तुम्हारा ही बच्चा है। जब तक ये जहन में नहीं उतरेगा तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। मैं नहीं मानता कि मैं सफल हूं, परंतु प्रयास जरूर करता हूं। अच्छे अध्यापक सभी करते हैं। तो छात्र का दुख समझ में आ जाता है चेहरे से, और मुझे लगा कि ये मायूस है, इसका मनोबल टूटा हुआ है, तो मैं उसके पास चला गया। मैंने बातचीत करना शुरू किया तो उसने मुझे कहा कि सर, मुझे कष्ट है कि मैं किस कॉलेज में आ गई। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, न टाइम टेबल लगा है, फर्नीचर टूटा है, क्लासरूम नहीं, बाथरूम सुविधा बहुत खराब है। और देखिए,
अगर हमारा युवक इस प्रकार से हताश रहे तो भारत का हित नहीं हो सकता। तो दायित्व हम सब जो अध्यापक वर्ग हैं उनके लोगों का है, उनके सदस्यों का है कि कभी भी यह बात, इस प्रकार की सोच छात्र के मस्तिष्क में नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। मेरे साथ मेरे और भी सहयोगी थे, प्रोवाइस चांसलर साहब थे, डायरेक्टर साउथ कैंपस भी थे, और मैंने वहीं न जाने क्या हुआ कि मैंने वहीं प्रतिज्ञा की कि मेरा कार्यकाल समाप्त होगा उसके पहले मैं वादा करता हूं कि इस कॉलेज को हम ऊपर एकदम ले जाएंगे। तो कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन कहीं ईश्वर ने सुने, और कुछ ही दिन बाद ज्ञानोतोष यहां प्रिंसिपल बन गए और इस कॉलेज का कायाकल्प होने लगा। और जो कॉलेज लोग सुन के कतराते थे, दूसरी दृष्टि से देखते थे, वह कॉलेज इस समय शिखर पे है। भारत इतनी महान यात्रा है और इसी से भारत का भला हो रहा है। अच्छी पढ़ाई होती है, सोच अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है और सुधार होने वाला है। कुछ ही मिनट के लिए मैं ज्ञानोतोष के साथ बैठा था, उसी में इन्होंने मुझे अवगत करा दिया कि किस प्रकार से यहाँ पर और सुधार ला रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि मुझे तो हटे कई वर्ष हो गए हैं, ज्ञानोतोष भले आदमी है, श्रेय दे देते हैं मुझे। कॉलेज उस मार्ग पे है, चला जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट गैदर्स मोर एंड मोर मोमेंटम एज टाइम गोज बाय। और इसी से भारत का भला है। आज मैंने पूछा, शायद विनीता से ही बात हुई, जो बता रही हैं कि पहले जिस प्रकार से एडमिशन होता था उसके मुकाबले में CUET से जब दाखिले हुए हैं तो एक ऐसा वर्ग आ रहा है जो भारत का और हित करेगा, छात्रों का। छात्र ऐसे आ रहे हैं, पहले भी अच्छे आ रहे थे, मैं ये नहीं कहता। यही भारत की कहानी है, अनंत काल से और अनादि काल तक रहेगी। आप उसको भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, इंडिया कहिए, उससे मुझे मतलब नहीं। यात्रा यही है, मैं इसको महायज्ञ मानता हूं। महायज्ञ है, आहुति इसी प्रकार से होगी कि अच्छे छात्र उत्पन्न होंगे, समाज का भला करेंगे, वही महायज्ञ की आहुति है। सोच अच्छी होगी तो जो ऋण उनके ऊपर उनके पहले वाले पीढ़ियों का पड़ा है, उस ऋण को चुकाते चुकाते आने वाली पीढ़ियों को ऋणी बना देंगे। भारत ने ये किया है, सदैव किया है। अब भारत को ध्यान से देखिए, क्या है भारत। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, परंतु भारत मेरा देश है, भारत मेरी मां है, जननी है। जो कुछ पाया सीखा यही है, इसी मिट्टी में पले हैं, DNA में यही मिट्टी प्रवेश कर चुकी है। तो जननी को आप प्यार नहीं करेंगे और विकल्प क्या रहेगा? आपका उद्धार उसी में है और हर कोई करता है। भारत ने जो खूबी का जननी की होती है, किसने खूबी से अनादिकाल से निभाई है। इतनी अच्छी बातें अनन्या जी ने कही। वैसे हर महिला अच्छी बात कहती है, मैं मानता हूं, बिल्कुल। अनन्या जी ने बहुत खूबसूरती से कहा। विवाह पश्चात मुझे ये सिद्ध हो गया था कि सब महिलाएं अच्छा ही बोलती हैं, और ये सच है। देखिए, गांधी जी ने बार बार कहा, और गांधी जी कोई बात हल्के में नहीं कहते थे, जो भी बात कहते थे गंभीरता से, कि अहिंसा के सबक उन्होंने बा से सीखे, कस्तूरबा से। ये बात मुझे आसानी से और परंपराओं में नहीं मिलती है। मैं इतनी तरह तो विशेषज्ञ नहीं हूं, परंतु जितना मैं समझ सका हूं, जितना मैंने अध्ययन किया है, इस प्रकार की सोच मुझे और परंपराओं में
सरलता से नहीं पाता हूं। आधुनिक युग में तो बहुत ही कम पाता हूं कि गांधी जिसने विश्व के स्तर पर एक नया विकल्प दिया, हमारा आध्यात्मिक विकास और सामाजिक विकास एक ही यंत्र से, एक ही मार्ग से होगा, सत्य और अहिंसा। और मैं मानता हूं वो एक ही सिक्के के दो पहलू। वो कहां से पाते हैं? वेदों से नहीं, उपनिषदों से नहीं, सब कुछ की उन्होंने सहायता ली। पर वो आदमी क्या कहता है कि मुझे बा से मिला, अहिंसा का सबक मैंने बा से सीखा। और बा और गांधी एक ही आयु के थे, वो कुछ महीना बड़ी थी, वो मोहनिया बुलाती थी उनको। तो बा ने ये कभी नहीं कहा कि आओ मोहनिया तुम्हें मैं अहिंसा सिखाती हूं, नहीं, बा के आचरण से गांधी जी ने ग्रहण किया, आचरण से। विवाह पश्चात जैसे ही जीवन आरंभ हुआ, दाम्पत्य, तो गांधी जी सीखने लगे। आप उनकी मैं तो मानता हूं कि गांधी जी को समझना है तो उनकी आत्मकथा पढ़ लो, और तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, क्या नहीं लिखा है। लेकिन मेरे लिए तो आत्मकथा ही सब कुछ है। मैं जानता नहीं कि आज की युवा पीढ़ी पढ़ती है कि नहीं गांधी की आत्मकथा। मैं आपके हित के लिए कह रहा हूं कि कुछ अंश ही पढ़ लो। हमने एक कोर्स चलाया था जब मैं वाइस चांसलर था, शायद अब बंद हो गया है। गांधी जी के जीवन के 12 निर्णायक अनुभव, घटनाएं, जिससे गांधी गांधी बने, उन पे छात्र के साथ, ये नॉन क्रेडिट प्रोग्राम था और कोई ब्लैक बोर्ड की टीचिंग नहीं थी, कोई नोटबुक नहीं था, कोई रटाना नहीं था। उन घटनाओं को लेकर, उन अनुभवों को लेकर चर्चा कि आपके जीवन में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, या आपके जानकारी में किसी समाज के हिस्से में आपने देखा नहीं देखा, अगर होता तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती। और छात्र इस कदर जुड़ गए उसके साथ और सोच बदलने लगी। दूसरा कार्यक्रम हमने चलाया था, ये सारी भारत की परंपरा है। गांधी ने कहा था कि अहिंसा और सत्य मेरी दी हुई चीज नहीं है। He said they are as old as the hills. पहाड़ों से आयु में कम नहीं। और ध्यान से सोचिए, तो भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, भगवान महावीर ने भी यही कहा, सबने यही कहा, गुरु नानक ने भी यही कहा, सबने यही कहा, जो भी यहां पर हुआ, कबीर ने यही कहा, निजामुद्दीन औलिया ने भी यही कहा। तो अनादिकाल से मैं देख रहा हूं, क्या गांधी कहते हैं कि बा ने जिस प्रकार अपने सिद्धांतों को, आदर्शों को, अंतःकरण के विश्वास को प्रकट किया, उस पे अडिग रही अपने तरह से, वही अहिंसा थी। मैं एक उदाहरण देता हूं, यही भारत है, इसको समझ लीजिए। प्रतिज्ञा पे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, बिल्कुल बा ने उसी पे टिकी रही। बा बीमार थी दक्षिण अफ्रीका में, पूरी तरह से ऑपरेशन हुआ था, बहुत खून बहा था और ऐसा लगा कि बचेंगी नहीं। तो डॉक्टर ने गांधी से कहा कि देखो भाई, बहुत नाजुक परिस्थिति है, शायद नहीं बचेंगी, एक ही विकल्प है, इनको मीट खिला दो, मांस। तो गांधी ने कहा देखिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो शाकाहारी हूं, अगर बा मान जाए तो खा ले, मैं नहीं मना करूंगा। डॉक्टर नाराज हुआ कि पेशेंट से कौन पूछता है, तुम कहो और मैं दे देता हूं। तो गांधी ने कहा ये तो मैं नहीं करूंगा, भी कोई कम थे। फिर भी डॉक्टर ने कहा चलो बा से पूछते हैं। तो बा से पूछा तो बा ने कहा मर जाऊंगी लेकिन मैं मांस को नहीं छूऊंगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मांस खाना बुरा है, इसको अन्यथा न लीजिएगा, ये आपकी सोच है, जैसी आपकी आस्था। उसमें भी मैं बताना चाहता हूं कि भारत की परंपरा को गांधी किस प्रकार से निभा रहे थे। He says, मैं नहीं खाता, मैं नहीं लूंगा, लेकिन बा ले लेगी, मैं खुशी से उसको दे दूंगा। बा ने कहा मैं मर जाऊंगी, नहीं लूंगी। अडिग होना अपने विश्वास में, और किस प्रकार से न उन्होंने बड़ा प्रवचन दिया कि ये वह है, कुछ नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं मरने को तैयार हूं। और फिर गांधी जो बा को इतना मानता था, जो बा इतनी प्रिय थी कि जब बा का निधन हुआ और वो महात्मा जो राष्ट्रपिता था टूट गया। मैं मानता था कि गांधी तो एकदम डिटैच्ड रहे, भगवत गीता के अनुयायी थे, लेकिन जब बा गुजर गई तो गांधी मृत्युशैया पे पड़ गए।
तो था कि अब नहीं बचेंगे। उस समय कैद थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, और यही था, अंग्रेजों ने तो उनकी तैयारी कर दी थी दाह संस्कार की, तब लकड़ियां वकड़ियां इकट्ठा हो गई थी। यह हाल बाघ के जाने पर हुआ। क्या अटैचमेंट था गांधी का पास। वह गांधी जब बाघ कहती है कि नहीं खाऊंगी तो तैयार हो गया कि ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम निकालो मेरे अस्पताल से, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो गांधी ने निकाल लिया। अपने बेटे से कहा कि तुम क्या समझते हो। बेटे ने कहा नहीं, बात ठीक कह रही है, बस चल पड़े लेकर भागो। वह बच गई। लेकिन यही अहिंसा होती है कि अपने एक तरीके से बिना पॉम्प बिना शो के बा ने निभाया अपनी आस्था को। किसी को तंग नहीं किया। कष्ट होगा, चुनौती होगी, लेकिन तंग नहीं किया, किसी को कोसा नहीं, अडिग रही अपने विश्वास में। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। भारत की परंपरा इसी पर टिकी हुई है। भारत इसी से बना है। ये न सोचना कि गांधी एक्सीडेंट थे, अचानक इस देश में पैदा हो गए। इस धरोहर के रूप में ही सब कुछ ऐसे आया है भारत में, और अनादिकाल से। आप चले जाइए, जब से चाहे देख लीजिए, उपनिषदों का काल ले लीजिए, वेदों का ले लीजिए। आरंभ की ऋचा है ऋग्वेद की, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। क्या कहती है? लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। मुझे ये बताओ, किसी भी छात्र से मैं कहता हूं कि अपने हृदय में टटोल कर अंतःकरण से पूछो कि सात्विक, दिव्य, दैविक विचार किसको कहते हैं, तो कभी नहीं कहेगी तुम्हारी अंतःकरण कि मारो किसी को। कभी नहीं कहेगी कि किसी की हत्या करो। कभी नहीं कहेगी कि किसी प्रकार से झूठ बोलो। आत्मा नहीं कहती कभी झूठ बोलने को, कभी नहीं कहती। ये तो हम अपने लोभ में, अपने जीवन के लाभ को उठाने के प्रयास में ये सब करते हैं, लेकिन अंदर वह आत्मा की आवाज हमें काटती रहती है। और क्या कह रहा है ऋग्वेद? ये ऋग्वेद किस काल का है? देखिए, इतिहासकारों ने, मैं नहीं जानता अनन्या की क्या सोच है, इतिहासकारों ने बड़ा खिलवाड़ किया है। और मैं इस पे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता कि ऋग्वेद कब थे कब नहीं थे, परंतु मैं धरोहर के रूप में आपको गणित का सहारा लेकर कुछ बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं ऋग्वेद ईसा मसीह से करीब 1500 साल पहले रचे गए थे। ऋग्वेद रचा गया था, बाद में और वेद आए थे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं गणित के आधार पर। मुझे आज तक कोई भी साहित्य और इतिहास से जुड़े विशेषज्ञों ने मुझे मेरी बात को काटा नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि गणित कह रहा हूं। क्या 200 वर्ष पहले एडिनबरा के उस काल के वाइस चांसलर, 200, ये बड़ी पुरानी वहां की संस्थाएं हैं, 200 वर्ष पहले जो वाइस चांसलर थे रॉबर्टसन, वो इतिहासकार थे। उस समय ब्रिटेन के सर्वश्रेष्ठ हिस्टोरियन थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, बेस्ड ऑन ग्रीक एंड लैटिन सोर्सेस। 200 वर्ष पहले की पुस्तक है। न जाने को यहाँ इसको छुपा दिया गया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं चाहूंगा कि ऐसी पुस्तकों को हम, इट्स अ मार्वेलस बुक, उसमें ना कोई आइडियोलॉजी है। इतिहास लिटरली ट्रांसलेटेड क्या कहता है? एज इट हैपेंड, उसी को इतिहास कहते हैं। ऐसा हुआ था, दर्शाया है। उसमें आप आइडियोलॉजी वगैरह वो सब दर्शा के तब जोड़िए। ये नहीं कि पहले इतिहास बदल दीजिए। और इसमें किसी एक सोच विचारधारा से जुड़े लोग नहीं, हर तरह के अपने अपने बदल देते हैं। इतिहास को नहीं बदलते, इतिहास को नहीं बदलना चाहिए। वहां पुस्तक में ग्रीक लैटिन सोर्सेस है, परंतु एक अध्याय में वो कहते हैं कि मेरे हाथ एक संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट लगी। कर्नाटक के नाइट स्काई की रीडिंग है, एस्ट्रोनॉमी की मैन्युस्क्रिप्ट, मैथमेटिकल एकदम। So he says, I have taken the help of the professor of mathematics at Edinburgh to help me understand what it says. संस्कृत में तो ये सब विशेषज्ञ होते हैं, और वो कहते हैं कि जब हम दोनों ने मिलकर उसका विश्लेषण किया, when we analyzed it, it is a reading of the night sky on a particular date.
And he says we use the mathematics involved to determine and prove that it is actually a reading on the date that it says it is. मैं तो आज भी कुछ लिख सकता हूँ कि मैंने 2000 साल पहले किए है, उसमें ये रीडिंग है, लेकिन जब आप गणित डालिएगा तो उस गणित में चूक आ जाती है। यही गणित का जादू है। Unless you do it exactly on that time and date, आगे बढ़ते जाएंगे ना, कई सौ साल बाद उसमें चूक आ जाती है। इसमें नहीं आती है चूक, तो वाकई उसी काल की है। Then what does he say? He says, Robertson says, what is that date? कब की है? जो भी डेट है वो सही है, उसी समय उन्होंने यह ऑब्जर्वेशन लिया है, परंतु क्या था वो काल? आज से 200 वर्ष पहले कह रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले की रीडिंग है। Think about this. This is mathematically established and no one in the world has challenged that reading, that analysis. आज तक नहीं किया किसी ने। And then he says that that reading uses mathematics of the order of sophistication of spherical trigonometry. That's a very complicated mathematical construct. Spherical trigonometry. आपने स्कूल में प्लेन ट्रिग्नोमेट्री किया होगा, 2 डायमेंशन, साइन थीटा, कॉस थीटा। ये 3 डायमेंशनल है, बहुत कठिन है। उसी से एस्ट्रोनॉमी पढ़ी जा सकती है, उसी से एस्ट्रोनॉमी के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं। अब सोचिए आप 1 मिनट के लिए, ऋग्वेद के काल के दौरान जिस गणित का आविष्कार हुआ, और बड़े ऊंचे दर्जे की गणित है, जिसको हम पाइथागोरस का थ्योरम कहते हैं। यही भारत की परंपरा है, यही भारत है, इसको समझिए। इसमें इतिहास भी है, गणित भी है, धरोहर भी है, सोच है, अहिंसा है, दर्शन है, सब कुछ है। पाइथागोरस का थ्योरम जो हम पढ़ते हैं पाइथागोरस के नाम से, पाइथागोरस के काल के 800 साल पहले भारत में उसका आविष्कार हो चुका था। किसने किया था? ऋग्वेद के जो रचयिता थे, उन्होंने ऋग्वेद के साथ जुड़े जितने भी योगी, ये यज्ञवेदी के जो क्रियाएं थी, उसके दौरान यज्ञवेदी बनाने की जो विधियां हैं वो आर्किटेक्चरल वंडर्स है, और उसमें जो विधियां हैं वो ज्योमेट्री से जुड़ी है, और उसके साथ जो बनाते थे, उसकी गणित जो समझते थे, वो गणितज्ञ थे जिन्होंने शुल्ब सूत्र नाम की 16 पुस्तकें लिखी, जो आज तक है, बाकी खो गई। उन 16 पुस्तकों में से एक है बौधायन के नाम से। गणितज्ञ थे, आर्किटेक्ट थे, उन्हीं ने यज्ञवेदियों को साक्षात्कार किया जो ऋग्वेद में दी गई है। आकार से, ज्योमेट्री से, मैथमेटिक्स से उन्हीं ने खोजा। परंतु मैंने जब वैज्ञानिकों से, जो इतिहास के वैज्ञानिक हैं, तो विज्ञान के इतिहास से जुड़े विशेषज्ञ हैं, उनसे जब बात की है, जिनके रिसर्च है, और ये किसी आइडियोलॉजी से जुड़े नहीं, आज के नहीं, मैं 50 साल पहले के काम की बात कर रहा हूं, उन सब ने कहा कि बौधायन से पहले भी ये थ्योरम जाना गया था। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने उसमें थोड़ा शोध करना शुरू किया। अंत में मुझे क्या मालूम पड़ा कि पाइथागोरस के जो शिष्य थे, ओपिलियस, जिन्होंने फ्लोरिडा लेक्चर्स दिए थे, फ्लोरिडा वो प्रांत की बात नहीं कर, ओपिलियस के लेक्चर्स, उसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि पाइथागोरस भारत गए थे, और कहते हैं कि जैन विचारधारा से अत्यंत प्रभावित हुई, कहते हैं वो, और वो वेजिटेरियन बन गए, चमड़ा पहनना छोड़ दिया, और सूर्यास्त के पहले भोजन करते थे, जैन परंपराओं से जुड़ गए। इसी बात को मैंने वोल्टेयर के राइटिंग्स में पढ़ा, जो फ्रेंच बुद्धिजीवी थे कई सौ साल पहले। वो लिखा है साफ, और लंबा ऐसे है वोल्टेयर का, कि he went to India to learn from the Brahmins on the banks of the Ganga। मैं नहीं कहता कि उन्होंने यहां से थ्योरम चुराया, ऐसी कुछ नहीं थी सोच उनकी, लेकिन यहां आए, उन्होंने ज्ञान विज्ञान सब देखा और ये ग्रहण किया। तो ग्रीक ज्योमेट्री, ग्रीक मैथमेटिक्स से भारत बहुत पहले, बहुत आगे निकल चुका था। अब ऋग्वेद की एज क्या हो सकती है? ऋग्वेद के दौरान पाइथागोरस का थ्योरम वगैरह चल रहा था, लेकिन स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की कोई चर्चा नहीं है इन शुल्ब सूत्रों में, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री 5000 साल पहले हुई। ज्योमेट्री जो पाइथागोरस के थ्योरम से जुड़ी है, वहां से स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचते पहुंचते विकास जो होता है, इवोल्यूशन,
That will take at least 500 years. तो ऋग्वेद का काल 5000 साल से पहले तो है ही हर हालत में। अब आप सोचिए कि क्या काल हो सकता है ऋग्वेद का। ऐसा प्रमाण कोई नहीं देता, परंतु इतनी पुरानी पुस्तक है। और सिर्फ ऋग्वेद की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पुरानी है, मैंने तो कहा कि आरंभ में उसमें अच्छी बात लिखी है ना कि आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्रुता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। और उससे उत्पन्न कुछ बड़े ऊंचे विचार चले, जो एक दिशा में जब चले तो उपनिषद में सब दर्ज हो गए। इतनी ऊंची सोच है उपनिषदों की, इतनी ऊंची सोच है। क्या कहता है उपनिषद, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, छंदोग्य है या मैं नाम खैर भूल रहा हूं, लेकिन क्या कहता है कि जिस प्रकार से सारी नदियां अंत में एक ही महासागर में जाकर बहती हैं, समा जाती हैं, उसी प्रकार all forms of worship lead to the same God, उसी ईश्वर के पास ले जाओ। अच्छा, हाँ मुझे लगा उसी में, थैंक यू। लेकिन गांधी ने भी यही बात कही, भगवत गीता में भी यही दोहराया जा रहा है। परंपरागत ये अनादिकाल से चली आ रही भारत की परंपरा, ये है भारत, यही भारत है, इसी तरह की सोच है। बराबर इस बात को दोहराया जाता है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में कि मैं उसको मानता हूं, वह है मेरे लिए भक्त, वह है मेरे लिए कौन? Who does not make a distinction between a learned Brahman, a cow, an elephant, a dog or an eater of dogs. Let me repeat this. ज्ञानी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्ते को खाने वाले में जो भेदभाव न करे। Can you? I have not found this kind of thinking at that level at such ancient times, and this doesn't mean we are superior. I'm not saying that. ये हटा दो मन से। इंसान ईश्वर के बनाए हैं, पूरे पृथ्वी में समाये हैं, सब बराबर, यही तो कह रहे हैं श्री कृष्ण। परंतु हम कितने जल्दी इसको समझ गए थे, ये भारत की परंपरा बन गई। भगवत गीता को तो सबसे ऊपर रखते हैं, हम सबको बराबर मानते हैं, किसी को ऊंचा नहीं समझते, किसी को नीचा नहीं समझते, हर प्राणी को, हर जीवात्मा को कह रहे हैं वो, हर किसी को। और देख लीजिए भगवान महावीर का जीवन, अब भगवान बुद्ध का जीवन देख लीजिए, नरसिंह मेहता जिनका नाम लिया उनका जीवन देख लीजिए, मीराबाई का देख लीजिए, कबीर का देख लीजिए, गुरु नानक का देख लीजिए, जिसको चाहे देख लीजिए, तिरुवल्लुवर को देख लीजिए दक्षिण भारत में, और आधुनिक युग में सुब्रमण्यम भारती को देख लीजिए। पूरे भारत में ये परंपरा बसी है, इस प्रकार के सोच की परंपरा। क्या है ये सोच? क्योंकि आप लोग शिक्षा से जुड़े हैं। छंदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है, इतिहास की बातें हैं, ये महागुरु थे सब। छंदोग्य उपनिषद में महागुरु हरिद्रुमत, उनके गुरुकुल में एक बालक जाता है प्रवेश करने। वो परंपरा हमेशा शिक्षा की संस्थाओं के कि भाई एंट्रेंस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, आप CUET देकर आए होंगे। हरिद्रुमत के पास ये बालक जाता है, 12 वर्ष का है, और पूछता है कि मैं क्या प्रवेश कर सकता हूं, यहाँ दाखिला ले सकता हूं? तो क्या कहते हैं हरिद्रुमत के बालक, हम तो सिर्फ ब्राह्मणों को दाखिला देते हैं, तुम किस कुल के हो? तो यह बालक कहता है कि यह प्रश्न मैंने अपनी माँ से पूछा था आपके यहाँ प्रस्थान करने के पहले, और मेरी माँ ने कहा कि बेटा मैंने दासी के रूप में बहुत घरों में काम किया है, और जहाँ भी रही मैं, मेरा लाभ उठाया है मर्दों ने, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता कौन है, परंतु तुम गर्व से कहना कि दासी पुत्र जाबाला के पुत्र सतराम। और वो कहता है गर्व से इस बात को। तो हरिद्रुमत कहते हैं बेटा इसी को ब्राह्मण कहते हैं, जो सत्य के अधीन हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण का तो मतलब ही है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जो ब्रह्म में लीन हो, और सत्य ही ले जाएगा ब्रह्म पे। तो हरिद्रुमत कहते हैं तुम ब्राह्मण हो, और उसको दाखिला देते हैं। अब देखिए कहानियां खत्म नहीं होती, शिक्षा के लोग हैं, इस पे गौर कीजिएगा। क्या कहते हैं हरिद्रुमत कि लगभग 300 ये कैटल है, गाय बैल ये सब, इनको जंगल में ले जाओ,
और जब तक ये 3 गुना ना हो जाए जनसंख्या में, वापस न लौटना। यू नो, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑन वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ उन दिनों में कैसे नापा जाता था? कैटल से। जिसके पास जितनी, विराट का युद्ध इसीलिए हुआ तो उन्होंने सारी उनकी गायें छीन ली, कैटल से होता था। और ये लिटरली वेल्थ मैनेजमेंट है, हैंड्स ऑन लर्निंग। ये भारत की परंपरा है। भारत को समझो, जिसने भी भारत का उद्धार किया है वो हाथों के प्रयोग में निपुण था। चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे गांधी जी हो, सब हाथों के प्रयोग में निपुण थे। ये थियरी नहीं बगाड़ते थे, प्रैक्टिकल आदमी थे। और सत्यकाम जब लौटता है, जब वो 3 गुना हो जाती हैं, तो हरिद्रमत कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे तेज है। कौन था तुम्हारा गुरु? तो सत्यकाम कहते हैं कि मैंने हवा वायु से सीखा, मैंने पेड़ों से सीखा, मैंने बारिश से सीखा, मैंने जानवरों से सीखा। अर्थात वहां जाकर उनको लाइफ साइंसेस न आती कि कैसे इनकी रक्षा की जाए, कैसे पॉपुलेशन में वृद्धि हो, कैसे इनका जो आहार तय किया जाए, कैसे इनको शरण दी जाए, मैं अपना भी कैसे ख्याल करूं, बीमार पड़ो तो क्या करना है। ये सारा ज्ञान हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट से हुआ। और उस परंपरा को भारत ने कितने खूबी से बढ़ाया कि ज्ञान विज्ञान भारत का हमेशा हाथों के प्रयोग से जुड़ा रहा, हमेशा। India never taught in the ancient Mimamsa school of philosophy says categorically that knowledge without action is meaningless. Action और knowledge एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप एक करेंगे तो दूसरा अनिवार्य है, होगा ही होगा। और ये एक्शन करेंगे तो नॉलेज, और नॉलेज करेंगे तो एक्शन, ये होना ही होना है। लेकिन हम बीच में भटक जाते हैं गोरों के प्रभाव में। गोरे तो सुधर गए, हम भटक गए। ब्लैक बोर्ड, दीवारें, नोट्स और इम्तिहान, हमने शिक्षा को उसमें बांध दिया। परंतु अगर सही रूप से आप समझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय की देन है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने उसको रचा वो मुझसे कहते हैं कि ये वही चीजें हमने फोटोकॉपी किया है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ था जब तुम कुलपति थे, जिन्होंने रचा है। और मैं उसका ऑफिशियल रिव्यूअर रहा, ऑफिशियल मेरा नाम है वहां, तो मैं और दावे के साथ कह सकता। और ये परंपरा हमारी नहीं है, हमने नहीं बनाया, अनादिकाल से चली आ रही। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हरिद्रमत ने ये कहा, तो उसी छंदों के उपनिषद में ऋक्व है, उसके पास खबर पहुंचती राजा के पास कि बड़ा ज्ञानी है, ये हाथों के प्रयोग में निपुण है और ज्ञानी है। तो राजा कहते हैं कि इसका ज्ञान तो मुझे भी चाहिए, तो भेजते हैं अपनी सेनापति सबको, उसको बुला लाओ। तो वो इनकार कर देता है, नहीं जाऊंगा मैं। तो राजा और बड़े अधिकारियों को भेजते कि बुला, फिर वो इनकार कर देता है। तो राजा सोचते क्या बात है, तो मैं खुद जाता हूं बुलाने। राजा सेना लेके जाते हैं बाकायदा पूरे तामझाम के साथ। कहते हैं कि मुझे तुमसे ज्ञान लेना है, मेरे साथ चलो। कहते हैं नहीं दूंगा। तो मैं यही लूंगा, नहीं दूंगा। तब राजा वापस आके सोचते हैं कि क्या बात है। तब उनको लगता है अगर तुम इस अहंकार के साथ जाओगे कि राजा हो, तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा नहीं। ज्ञान तो ईश्वर का मार्ग है। कबीर ने कितने खूबसूरती से कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है जब मैं नहीं। तब राजा वस्त्र वगैरह उतार के साधारण वस्त्र पहनकर नंगे पैर जाते हैं, विनम्रता से, अहंकार विहीन होकर। तब कहते हैं कि मुझे शिष्य बना लो, तब वो बिठाता है। और यह भी परंपरा चलती आ रही है भारत में। यही है ज्ञान का मार्ग, यही है अपने को सुधारने का तरीका। और भारत ने इस पूरे प्रक्रिया को कैसे समझा कि एंगस मेडिसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक हिस्टोरियंस, उनकी एक मॉन्यूमेंटल स्टडी है, कुछ ही वर्ष पहले निकली थी, उनका निधन हो गया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसमें डेटा के आधार पर फर्स्ट सेंचुरी एडी से लगभग 18th सेंचुरी तक का वो डेटा के आधार पर अध्ययन करते हैं पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक्स, और सिद्ध करते हैं आंकड़ों के आधार पर कि इंडिया डोमिनेटेड ग्लोबल जीडीपी। क्या बात थी, भारत की क्या परंपरा थी, ये क्या है जो हम धरोहर में अब फिर से समझने लगे हैं, क्या थी? बस यही
कि नॉलेज, स्किल्स, एक्शन समाज की आवश्यकताओं और चुनौतियों से जोड़ो। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगेन पुराने काल से दे रहा हूं, 3 उदाहरण देता हूं। यही भारत है, इसको समझो, इससे गर्व करो, उससे ज्यादा प्रेरित हो कि ऐसी सोच तुम्हारे भी जहन में उतरे और तुम भी इसी प्रकार के आविष्कार करो। इस चक्कर में मत लेट जाना कि हम बड़े महान थे, इससे मुझे घृणा है। जो लोग इस प्रकार से उद्घोषित करते हैं कि हम बड़े महान थे, मैं उनसे कतरा जाता हूं। इसका कोई अर्थ नहीं है कि हम बड़े महान थे ना, इससे प्रेरणा लो, इससे सीखो। क्या परंपरा थी? देखिए, अफ्रीका के पास एक छोटा सा टापू है, और मुझे भारत के किसी भी इतिहासकार ने इन चीजों को नहीं बताया। मुझे ये सारी बातें अब जो बताने जा रहा हूं, मुझे हार्वर्ड और पोर्चुगल से मिली, जहां से किसी ने नहीं बताया। हम कहां से कहां भटक गए हैं, मैं नहीं जानता। क्या बात थी? वो टापू है, छोटा सा है, उसका नाम है सोकोट्रा, सोकोट्रा आइलैंड। उसका नाम एक्चुअली संस्कृत में था सुखद्र द्वीप, सुखद्र द्वीप, सुख देना। और वहां पर मुझे ये अमेरिकन इतिहासकारों ने बताया था, आज से 10 साल पहले, हार्वर्ड के ही प्रोफेसर थे, कि वहां पर कई गुफाएं हैं। उन गुफाओं की दीवारों पे दास्तान रची गई है संस्कृत और पाली और इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, भारत से जाने वाले नाविकों की, सेलर्स की। और किस काल की है? ईसा मसीह के काल से आगे बढ़ जाती है, सदियों तक। और वो क्या कहते हैं कि हम भारत से आए हैं, रास्ते में रुके हैं, यहाँ पानी और अपने खाने पीने का प्रबंध करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो भारत के जहाज पानी के वहां से आते थे, पूरे इंडियन ओशन को क्रॉस करके सुखद्र द्वीप पे रुकते थे। वहां उनको सुख मिलता था, खाने पीने का चैन, फिर आगे बढ़ते थे और अफ्रीका और फिर उसके आगे भी जाते थे और इधर भी जाते थे, ईस्टर्न साइड में भी। उसका भी तमाम प्रमाण है, तमाम प्रमाण। और मैं तो ये प्रमाण दे रहा हूं, गुफाओं पे लिखा है, इसको कौन कतराएगा, कौन इसको काटेगा? और हम नहीं, हमें तो अमेरिकन कह रहे थे, मुझे बड़े अच्छे जाने माने हार्वर्ड के। अब सुनिए, आप जो है क्या करने जाते हो। पहली चीज, भारत उस काल से समुद्री मार्ग को कैसे तय करते हैं बिना किसी प्रकार के खतरे से, वो उस बात को समझ गया गणित के आधार पर। भारत की ज्ञान की संस्थाओं से एक यंत्र उत्पन्न हुआ था गणित पे आधारित, उसको रपल गाय या कमाल कहते हैं। और वह पोजीशन एट सी बता देता है। उसी का सहारा लेकर भारत के जहाज जाते थे, वहां पर व्यापार करके और बिल्कुल सुरक्षित लौट आते थे। यूरोप इस बात को न्यूटन के काल में भी नहीं समझ पाया था। न्यूटन खुद पार्लियामेंट में उद्घोषित करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि साइंस नोज नो मीन्स एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ डिटर्मिनिंग पोजीशन एट सी। जबकि भारत के जहाज कब से जा रहे थे, और रपल गाय के आधार पे। और एक और बात बताता हूं, यह भी मुझे पहले हार्वर्ड से पता चली, फिर पोर्चुगल में मैंने वेरीफाई किया। वास्को डी गामा, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत की, वास्को डी गामा ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अफ्रीका से एक हिंदुस्तानी नेविगेटर को उठाया, काना नाम था, गुजरात से, क्योंकि हम तो जाते रहते थे वहां, निरंतर जा रहे थे, कब से जा रहे थे। तो वास्को डी गामा ने उसका सहारा लिया और वो वहां से सीधे उनको केरल ले गया, पूरे इंडियन ओशन को पार कर। जब मुझे हार्वर्ड वालों ने बताया तो मैंने पोर्चुगल के जानी मानी प्रोफेसर थी हिस्ट्री की, मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे पूछा। उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही पढ़ाते और क्या करें, हमारे यहाँ क्या पढ़ा रहे थे कि ये तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग को जो खोजा, ये क्या हो गया है, भारत को खो बैठा है। लेकिन इसलिए फिर मत बहकावे में आना, अरे हम बड़े महान थे। खबरदार, क्या बात थी, नॉलेज वॉज बीइंग यूज्ड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। नॉलेज इकोनॉमी थी भारत की, और वो इसीलिए मेडिसन कहते हैं कि इतने सदियों से भारत ने ग्लोबल जीडीपी डोमिनेट किया, चाइना सेकंड था। आज के तारीख में फिर इन परंपराओं, अगर भारत को समझना चाहते हो, चाहे उसको आप नोशन कहिए, चाहे कॉन्सेप्ट कहिए, चाहे आइडिया कहिए, तो दैट इज द आइडिया ऑफ भारत। हमेशा से नॉलेज कंबाइंड विद एक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ऊंची सी ऊंची फिलॉसफी गीता देती है, लेकिन व्यवहारिक भी रहती है। कह रहे हैं ना कि ज्ञानी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्ते को खाने वाला बराबर है। वहीं पर श्री कृष्ण कहते हैं
कि न मैं सत्य हूं न असत्य हूं। जिसने गणित नहीं पढ़ी है वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। इतनी गहरी बात है। और गणित ने सिद्ध किया है कि कोई भी लॉजिकल सिस्टम आप बना लीजिए, कोई भी, उसमें लॉजिक के आधार पर आप उत्पन्न कर सकते प्योर लॉजिक से परफेक्टली सेंसिबल स्टेटमेंट्स which will be outside that system. You can neither prove them nor disprove them. They are neither true nor false. यानी ईश्वर इन चीजों से परे है। वही श्री कृष्ण कहते हैं, यह श्री कृष्ण जो हमें एक पुरुष के रूप में दिखाया जा रहा है, he says in the Bhagavad Gita, look at what he says, I am the mother of the universe. These are his precise words. तो गांधी ने गीता को क्या दर्जा दिया? माँ का। गांधी साहित्य में गांधी ने माँ का दर्जा दिया। और कहते हैं गांधी, जब तक मुझे अंधेरा ने घेरा, मुझे लगा कि दिशाहीन हूं, विकल्प नहीं है, तो मैंने माँ का सहारा लिया, गीता का, और मुझे रास्ता मिल गया। कहीं से आशा की किरण उत्पन्न होती थी और मैं आगे बढ़ जाता था। That is the power of the Gita, the highest levels of philosophy combined with practical wisdom. ये भारत की परंपरा है। कहाँ गीता में लिखा है कि किसी का साथ दुर्व्यवहार करो? कहीं बात ही नहीं कही हो। जिसको तुम अपना धर्म मानते हो उसको निभाओ। गांधी कहते हैं कि नास्तिक के लिए उसका नास्तिकता उसका धर्म है। अगर सही रूप में निभाओगे तो तुम हानि नहीं पहुंचाओगे किसी को। कहते हैं कि नास्तिक भी ईश्वर को पालेगा उसी नास्तिकता के मार्ग से। और क्या परंपरा भारत की है उदारवादी, कि हमारे परंपरा में, आपको तो मालूम ही होगा अनन्या जी, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, कि एक कसाई का वर्णन आता है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे मीट खाने से, मैं नहीं खाता, पर मैं किसी को कहूंगा नहीं कि वह मुझसे ऊंचा है या नीचा है, आपकी जैसी सोच हो। परंतु हमारे यहाँ परंपरा में, वैष्णव परंपरा में मीट खाने को नहीं माना गया। क्या है यह कहानी, आप सुनिए। कि एक कसाई है जो मानता है कि यही मेरा धर्म है कि मीट को बेचूं, मैं बकरे को मार दूं। इतने निष्ठा से, इतने ईमानदारी से वो करता है इस काम को कि वो धर्म निभा रहा है। वो मानता ही मेरा धर्म है और ईमानदारी से करता है। तो अंत में नारायण अवतार लेते हैं उसका उद्धार करने के लिए। उसका उद्धार होता है इसी से। फिर मैं दोहरा रहा हूं, इसका यह अर्थ न मानिएगा कि मीट खाना अच्छा है या बुरा, मैं उस पर नहीं टिप्पणी करूं। परंतु भारत की परंपरा कैसे निभाई जाती है। बादशाह खान उसी गांधी के पास आते हैं बीमारी के बाद वर्धा में, जिस गांधी ने अपनी पत्नी की जान को दावे पे लगा दिया था कि सिद्धांतों को नहीं तोड़ूंगा। वहां पर खान आते हैं और बादशाह खान तो मीट खाते थे और नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो गांधी ने अपने हाथों से रोज मीट पका के उनको खिलाया। बहुत लोगों ने निंदा की, तो गांधी ने कहा मैं नहीं खा रहा हूं ना, वो खाते हैं, मैं उनको नहीं रोकूंगा। और उनके लिए कौन पकाएगा, वो तो बीमार है, तो मैं पकाऊंगा, नहीं तो वो रहेंगे नहीं। यह भारत की उदारवादी विचारधारा है, इसको ग्रहण कीजिए। यही भारत है, धरोहर में हमें यही मिल रहा है और अनादिकाल से इस बात को जोर जोर से दोहराया गया है। हमेशा से मैंने उपनिषदों को देखा, आप रामायण में देख लीजिए, राम ने शबरी के बेर खाए थे, जूठे बेर। उस जो समाज की सोच थी उसमें शबरी को दर्जा नहीं मिल रहा था ऊपर। इस लक्ष्मण संकुच आ गए, लेकिन राम ने जूठे बेर खा लिए। इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। निषाद राज गु ने सहारा दिया, उसने सहारा दिया जो समाज से परे था, राम का सहारा दिया। तो भगवान तो उसी के पास जाते हैं, दरिद्र नारायण। ये भारत की परंपरा है, इसको अपनाइए। भारत की सोच वैज्ञानिक रही है, उसको अपनाइए। एलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया, ज्ञानतोष मैं समाप्त करूंगा, नहीं तो ज्ञानतोष मुझे भोजन नहीं देंगे। ये धमका चुके मुझे कि भोजन खाना है सब, तो जरा ठीक ठाक बोलिएगा। मैं इनके साथ काफी आजादी ले लेता हूं। तो एलेक्जेंडर का सिकंदर आया यहाँ, बहुत फिर हमारे इतिहासकार चूक जाते हैं। मैं कोई है इतिहासकार यहाँ, भाई आपसे भी प्राइवेटली पूछ, नहीं आपके अलावा ये चूक जाते हैं। एलेक्जेंडर थोड़ा सा उसका भी मनोबल टूट गया था, वो ब्यास नदी पार नहीं कर सका। जब ब्यास नदी तक पहुंचा तो हमें गोरों ने क्या इतिहास सिखाया है
गोरे कहते हैं कि उसके सैनिक थक गए थे, लौटना चाहते थे। जो मैंने भारत की परंपरा से समझा है, दी ओरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, और मैंने अच्छे ऑल्टरनेटिव हिस्टोरियन जाने माने, इंक्लूडिंग प्रोफेसर द्विवेदी एट सेंट स्टीफेंस कॉलेज, उन सबने मुझे बताया, जो मैं कह रहा था वो सही है, कि अलेक्जेंडर के जो जासूस थे ब्यास के उस पार गए देखने की उधर किस प्रकार की सेना है, तो मगध साम्राज्य की पूरी सेना वहां पर डटी हुई थी और हजारों हाथी थे, हजारों घोड़े थे, पैदल सवार थे। तो वो लौट के आके सिकंदर से कहते हैं कि द इंडियन मगधन आर्मी इज वेटिंग देयर एंड द सोल्जर्स आर ईगर टू गिव यू बैटल। और तब वो लौटता है वहां से, वो जानता है कि इस पे विजय नहीं पा सकूंगा मैं। और जब लौट रहा है और वो दुखी है, तो पोरस से उसकी मैत्री हो चुकी थी। पोरस उसको क्या देते हैं पेट में, वो सोना नहीं, इनगॉट्स ऑफ स्टील, वुड्स स्टील। भारत उसमें निपुण था, उस प्रकार का स्टील। माइकल फैराडे ने भी उस कई सौ साल बाद कोशिश की उस स्टील को बनाने की, फेल कर गए। वह विधि भारत की थी जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और चीजों का योगदान था। वही स्टील से तलवार बनती थी, जिसको हम मैसेडोनियन तलवार कहते, डेमस्कस की तलवार, डेमसीन तलवार, वो वुड से स्टील थी। सिर्फ डेमस्कस में जाकर उसको आकार दिया जाता था, तलवार था, भारत की देन थी। और प्लिनी जो रोमन हिस्टोरियन है, उसके रिकॉर्ड पे है, वो ईसा मसीह से पहले, वो कहता है कि भारत से इस प्रकार की चीजें आती हैं। I don't know if you know this, that India invented not just plastic surgery but also cataract surgery. और मुझे फिर ये कहां से मालूम पड़ा, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। वहां एक बड़े जाने माने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर थे, उनकी पुस्तक में मैंने देखा। फिर मैंने इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वेरीफाई किया, वहां के भी इतिहासकार जो साइंस के बिल्कुल इंडिया से कैटरैक्ट सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी आई। और यंत्र जो उसके लिए है, उसका पूरा वर्णन है हमारे आयुर्वेद की पुस्तकों में। उन यंत्रों का जो वर्णन है वो तभी बन सकते थे अगर आप वुड स्टील का इस्तेमाल करें, और भारत इसका निर्यात करता था। और प्लिनी दुखी है कि भारत ये सब चीजें देकर और हमसे सोना ले जाता है, हम गरीब हो जा रहे हैं, भारत अमीर हो रहा है। इसीलिए भारत की परंपरा में भारत धनी रहा, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी थी। हम निष्ठा से नॉलेज को समाज के विकास के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज के लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। शिक्षा की संस्थाओं का यही दायित्व होना चाहिए। और शिक्षा का एक ही परिभाषा, एक ही ध्येय है कि हर व्यक्ति विशेष अपने अंतःकरण की जो ध्वनि है, जिसको मैं अंतर्ध्वनि कहता हूं, उसको पकड़ ले। और आप ध्यान से सुनिए ये परिभाषा, हर किसी के अंदर अंतर्ध्वनि होती है। और भारत ने इसी को समझा है परंपरागत हमेशा। गांधी ने सत्य की अंतर्ध्वनि पकड़ी, तेंदुलकर ने क्रिकेट की, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की, माइकल फैराडे ने विज्ञान की, न्यूटन ने विज्ञान की, वगैरह वगैरह। सब जगह जब तक इस अंतर्ध्वनि को नहीं पकड़ेंगे, असली मायने में आप शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होंगे। इसको पकड़िए, इसको समझिए और इसके अनुकूल समाज में कदम रखिए, तभी आप प्रशिक्षित होने लगेंगे। और आप देखिए, मेरी परिभाषा में कोई डिग्री नहीं जुड़ी है कि बीए होना। गांधी तो बीए भी नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी यूनिवर्सिटी। बहुत लोग भुलावे में रहते हैं कि लॉ की डिग्री थी ना, ही ओनली क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस, स्कूल का ही क्वालिफिकेशन था। तेंदुलकर के पास नहीं है। अमिताभ बड़े मुश्किल से बीएससी पास किए, पहले एक साल फेल हो गए। जिसको मैंने देखा, माइकल फैराडे दूसरी जमात से निकाल दिए गए थे स्कूल से। तो इनसे बड़ा कौन था ज्ञानी या विद्वान? तो यह सफल इसलिए हुआ कि इन सब ने अंतर्ध्वनि को पकड़ लिया और उसके अनुकूल कदम रखने रहे। यही भारत ने हमें हमेशा सिखाया। मीराबाई ने यही किया। उनकी ध्वनि कहती थी, कृष्ण की भक्ति करो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, दूजा न कोई, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स परस्यू योर गोल, योर बिलीफ। तेंदुलकर ने भी वही किया। कभी उन्होंने ये चिंता नहीं की, अरे मेरे पास तो सिर्फ 12वीं का सर्टिफिकेट है, वो भी मुश्किल से मिला है, मान लो क्रिकेट में फेल हो गया तो क्या करूंगा ना। क्रिकेट धर्म मान लिया उन्होंने, जुड़ के। अमिताभ बच्चन अच्छी नौकरी छोड़ के आए थे और आरंभ में बड़ी दिक्कत हुई उनको, और धर्म समझ के थे, एक्टिंग है, जुड़ के। हमसे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा, मुझे तो सिर्फ एक्टिंग करनी थी, परंतु निष्ठा से किए और कहां से कहां चले गए। तो यह निष्ठा अंतर्ध्वनि के साथ जोड़ के समाज में रखिए कदम,
तो आप प्रशिक्षित हो जाएंगे। भारत की यही परंपरा रही, जब तक मैं समझ चुका हूँ यही नई शिक्षा नीति में भी दोहराया गया, क्योंकि हम लोग के प्रयोग थे 2010 से 15 तक। इसी को मैं मानता हूं कि कॉलेज भी लगाएगा, यही भारत की परंपरा है, इसी को अपनाइए, इसी से भला होगा। यही भारत है, यही एक स्वरूप है, इसको समझिए। जय हिंद।